हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। टुडे वी आर गोइंग टू मेक दिस बेबी कैप। आज के ट्यूटोरियल में हम ये बेबी कैप बनाएंगे। आई हैव यूज्ड बीन स्टिच फॉर दिस कैप। मैंने बीन स्टिच यूज़ की है। दिस इज़ सिमिलर टू द पफ स्टिच दैट वी डू। ये पफ स्टिच के जैसे ही है, बट ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी है, तो बीन स्टिच इसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। और ये जो मैंने कैप बनाई है, ये 0 to 3 months के बेबी के साइज़ की है। दिस इज़ अ साइज़ which will fit 0 to 3 months baby. So I hope you like the tutorial. Let's begin. So we'll start with the magic circle. पहले हमने magic circle बनाना है. And now we need to chain 2. अब हमें 2 chains बनानी है. And we need to make the bean stitch now. अब हमें bean stitch बनानी है. So yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, 1, yarn over, go in, pull up a loop 2, yarn over, go in, pull up a loop 3. So here we have done that 3 times and we have a total of 1 2 3 4 5 6 7 loops on our needle. तो हमारे पास 7 loops हैं. Yarn over, pull through all the loops and chain 1 to secure. तो इस तरीके से हमने bean stitch बना ली. Now we'll make one more chain. एक और chain बनाएंगे and इसी तरीके से एक और bean stitch बनाएंगे. Yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop. So we have done that 3 times again. हमने फिर से 3 बार ये कर लिया. Yarn over, pull through all the loops and chain 2, 1 and 2. Then again we'll repeat. Yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, pull through all the loops, chain 2. तो इस तरीके से हमने 6 टाइम्स करना है. वी नीड टू डू दिस 6 टाइम्स. Yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop. So this is the 4th time that we have made the bean stitch. Chain 2. We need to make 2 more bean stitches. 2 और बनानी है हमने इसी तरीके से. Yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop. Pull through all the loops and chain 2. Then last bean stitch for this round. 1 2 and 3. Yarn over, pull through all the loops and chain 2. Now we'll go on top of the first bean stitch and slip stitch. तो जो पहला bean stitch हमने बनाया था उस पर slip stitch करके join कर देंगे. And then we'll pull the yarn tail and close our magic ring. तो ये yarn tail को pull करके magic ring को हम close कर देंगे. Now we'll slip stitch into the chain 2 space. अब हम chain 2 space में slip stitch करेंगे. And we need to make 2 bean stitch in between every bean stitch. तो ये जो जितने भी chain 2 space हैं हमारे पास, हर एक chain 2 space में 2-2 bean stitch बनाएंगे हम. So we need to make 2 bean stitches in each of the chain 2 spaces that we have. So we'll chain 2, yarn over, go in, pull, yarn over, go in, pull, yarn over, go in, pull, yarn over, pull through all the loops, chain 2. Then again go in, pull, yarn over, go in, pull, yarn over, go in, yarn over, pull through all the loops and chain 2. Then in the next chain 2 space, 2 bean stitches, 1 2 3, pull through all the loops, chain 2. Then again 1 2 and 3, pull through all the loops and chain 2. Then again in the next chain 2 space में फिर से ऐसे ही करेंगे. 3 बार yarn over करके पुल करके सब में से पुल करके chain 2 कर देना है और उसी जगह पे एक और bean stitch बनाना है. So every chain 2 space has 2 bean stitches. Now in the next chain 2 space, 1 bean stitch, chain 2, another bean stitch in the same space. Chain 2. Now in the next chain 2 space, I'll repeat the pattern
एंड आई मीट यू बैक हियर वंस आई कंप्लीट द राउंड। तो मैं इसी पैटर्न को रिपीट करके जब राउंड कंप्लीट होएगा फिर मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। कंप्लीटेड द राउंड, मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच ऑन द फर्स्ट बीन स्टिच ऑफ दिस राउंड। तो जो पहला बीन स्टिच था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है। और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, तो मैं कलर चेंज के साथ इसे स्लिप स्टिच करूँगी। सो आई चेंज द कलर while I'll slip stitch using both the yarn tails। तो दोनों yarn tails को यूज़ करके मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी ताकि जो नेक्स्ट कलर है वो भी मेरा अटैच हो जाए। It will just pull through both the colors and स्लिप स्टिच। इसको टाइट कर देते हैं, just pull it and tighten it up, the white one and the pink one। now we'll just work with the white color yarn। pink color ऐसे ही छोड़ देंगे, हम सिर्फ white color से काम करेंगे। I'm not going to fasten off the pink color as I'll be using it after next 2 rounds। तो next 2 rounds में मैं white यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद मैं वापस से pink color यूज़ करूँगी। so we'll use white color now, but if you are using one color for the cap you can just continue। तो अगर आप एक ही कलर से बना रहे हो तो हम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। chain 3 1 no we need to slip stitch in the chain 2 space first। पहले chain 2 space में slip stitch करेंगे और यहाँ से अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। so chain 2 yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, pull through all the loops and chain 1 to secure। अब हमें chain 1 ही करना है, 2 चेनें नहीं बनानी। we don't need to chain 2 now, we just need to chain 1 to secure the bean stitch। और यहाँ पे हमने 2 bean stitch बनाने हैं पहले। we'll make 2 bean stitches here। so 2 stitches here, chain 1 and now we need to go in the next chain 2 space and make 1 bean stitch। तो next chain 2 space में हम एक ही bean stitch बनाएंगे, chain 1। then in the next space again we'll work 2 bean stitches, 2 bean stitches बनाएंगे यहाँ पे, chain 1, another bean stitch here, chain 1, in the next space 1 bean stitch। तो अब इस तरीके से 2 1 2 1 वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। एक जगह पे एक चेन 2 स्पेस में 2 बीन स्टिचेस बनाएंगे और एक में एक। इन द नेक्स्ट अगेन वी नीड टू मेक 2 बीन स्टिचेस, 1 chain 1 and 2 chain 1। then again in the next space we'll work 1 bean stitch, नेक्स्ट स्पेस में हम 1 बीन स्टिच बनाएंगे, chain 1। सो आफ्टर एवरी बीन स्टिच आई एम जस्ट चेनिंग 1 नाउ। तो नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, 2 बीन स्टिचेस इन द नेक्स्ट स्पेस एंड 2। in the next space 1 bean stitch, in the next space 2 bean stitches, 1 and 2, in the next 1। तो ऐसे ही एक स्पेस में एक बीन स्टिच बनेगी, दूसरी वाली स्पेस में 2, फिर से नेक्स्ट वाली में 1 और फिर 2। अब नेक्स्ट वाली में यहाँ पे हम 2 बनाएंगे, 2 बीन स्टिचेस एंड 1 बीन स्टिच इन द लास्ट स्पेस। तो लास्ट वाली स्पेस में एक बीन स्टिच बनेगी, 1 बीन स्टिच इन द लास्ट स्पेस। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे हमने 2 से स्टार्ट किया था और 1 से हम एंड कर रहे हैं। नाउ विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट बीन स्टिच ऑफ दिस राउंड। तो इस राउंड के पहले वाली बीन स्टिच से हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दिख रही है।
तो अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो हेड के सर्कमफ्रेंस को मेजर करके आपने तब तक इसको बढ़ाना है जब तक कि आप उस मेजरमेंट तक नहीं पहुंचते, और उसके बाद से एक एक बीन स्टिच आप हर एक राउंड में करते जाओगे। जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो जिस सर्कमफ्रेंस की साइज़ का मुझे चाहिए मैं वहाँ तक पहुँच के फिर आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। तो अभी हम नेक्स्ट राउंड करते हैं। इसके बाद ये मेरी वाइट ये वाली तो फिनिश हो गई है, तो नेक्स्ट राउंड बॉल ऐड करना है मुझे यहाँ पे। तो इससे बेटर है कि मैं पहले पिंक वाली यूज़ कर लेती हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। एंड तो स्लिप स्टिच मुझे पिंक वाली से करना है यहाँ पे। सो इट्स बेटर टू स्लिप स्टिच विद द नेक्स्ट कलर। तो आई जस्ट गो इन द फर्स्ट bean stitch, hold both the yarn tails, both the yarns actually, and slip stitch. दोनों yarns को pull करके slip stitch कर देंगे. Then you can just pull the white color yarn to tighten it up and the pink color yarn. Now we'll slip stitch in the chain 2 space using the pink color. chain 2 space में slip stitch करेंगे, I mean chain 1 space, I'm sorry, chain 1 space में slip stitch करेंगे pink color yarn से, और यहाँ से pink color में use करने वाली हूँ. So from here I'm using pink color. After 2 rounds then I'll be adding my new ball of white and continuing with white. तो मैं नया बॉल फिर ऐड कर दूँगी वाइट का नेक्स्ट राउंड पे, और फिर उसके बाद वाइट यूज़ करूँगी एक राउंड के लिए. तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि 4th राउंड में हमने क्या करना है. लेट्स स्टार्ट विद राउंड नंबर 4. राउंड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. चेन 2 1 2 एंड यहाँ पे हम बीन स्टिच बनाएंगे. तो पहले हम 2 बीन स्टिच बनाएंगे. यहाँ पे 2 बीन स्टिचेस बनाएंगे. yarn over, go in, pull up 1 2 3, pull through all, chain 1. एक और बीन स्टिच उसी सेम जगह पे बना देंगे, सेम chain 1 स्पेस में. तो हमने 2 बीन स्टिच बना ली यहाँ पे. अब नेक्स्ट वाली स्पेस में एक बीन स्टिच हम बनाएंगे. सो वील वर्क 1 बीन स्टिच इन द नेक्स्ट स्पेस एंड 1 इन द नेक्स्ट स्पेस. तो नेक्स्ट जो स्पेस है चेन 1 उसमें भी हम एक ही बीन स्टिच बनाएंगे. तो अब जो हमारा ये जो पैटर्न है ये 1 1 2 का है. पहले एक बीन स्टिच 1 2 3 4 5 6 7, एक बीन स्टिच, फिर नेक्स्ट वाली स्पेस में एक बीन स्टिच, और फिर नेक्स्ट वाली में 2. तो अब यहाँ पे हम 2 बनाएंगे. 1 and 2. Then again in the next space we'll work 1 bean stitch. Next space में हम एक ही bean stitch बनाएंगे. And next वाली space में फिर से एक bean stitch बनाएंगे. 1 bean stitch in the next space. And 2 in the next वाली में 2 बनाएंगे. एक और 2. फिर से नेक्स्ट स्पेस में एक बनाएंगे. 1 बीन स्टिच इन द नेक्स्ट स्पेस. One bean stitch in the next. 2 in the next space. नेक्स्ट स्पेस में 2 बनाएंगे. 1 and 2 in the same space. तो यही पैटर्न यूज़ करके मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करूँगी. आई यूज़ द सेम पैटर्न एंड कंप्लीट द राउंड. So 1 bean stitch in the next space, 1 bean stitch in the next space, and 2 in the next. So you can see where you have 2 coming out from one space. In that space we need to work 2 bean stitches. Other than that we need to work 1 bean stitch. तो आप ये देख सकते हो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही जगह से 2 बीन स्टिच आ रहे हैं ना, उस वाली स्पेस में हमेशा 2 बीन स्टिच होते हैं. बाकी जो स्पेसेस हैं उसमें एक बीन स्टिच होता है. तो ये राउंड में कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ, दिखाती हूँ आगे क्या. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. आई कंप्लीटेड द राउंड एंड नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट बीन स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन. तो जो पहला बीन स्टिच था उस पर स्लिप स्टिच करके, उसके टॉप पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लूँगी.
एंड आई स्लिप स्टिच इन द चेन वन स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे. पता नहीं क्यों मेरे मुंह से चेन 2 निकलता है. इट्स चेन 1. तो चेन 1 स्पेस में स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट राउंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो पहले यहाँ पे स्पेस में आप देख सकते हो यहाँ से 2 बीन स्टिच निकल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 बनाएंगे. चेन 2 एंड स्टार्ट योर फर्स्ट स्टिच. चेन 1, अनदर वन इन द सेम स्पेस, उसी सेम स्पेस में एक और बनाएंगे. चेन 1. नेक्स्ट 3 स्पेसेस में एक एक बनेंगे. सो नेक्स्ट 3 स्पेसेस वी नीड टू मेक 1 स्टिच ईच. सो 1 इन द नेक्स्ट स्पेस, chain 1, 1 in the next space, chain 1, 1 in the next space, chain 1. Now in the next space we need to make 2. Next space में हमने 2 बनाने हैं. chain 1, second one in the same space, उसी same space में एक और बनाएंगे. chain 1. अब फिर से नेक्स्ट 3 स्पेसेस में एक एक बनेंगे और फिर 2 बनेंगे. तो इस जो राउंड का पैटर्न है वो 1 1 1 2 1 1 1 2 ऐसा है. सो दिस इज द पैटर्न फॉर दिस राउंड, 1 1 1 एंड 2, 1 1 1 एंड 2. तो इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पे हम पहले एक बनाएंगे. विल मेक 1, chain 1, 1 in the next space में एक, chain 1, next space में एक, chain 1 और next space में 2, 2 in the next space, 1, chain 1 and the second one in the same space, उसी same space में एक और. So I'll repeat the pattern and complete the round and then meet you back here to show you what to do next. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना. तो मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं वाइट कलर दोबारा से अटैच करूँगी. आई हैव कंप्लीटेड द राउंड एंड आई विल अटैच माय वाइट कलर अगेन. सो आई विल chain 1 after the bean stitch and we need to slip stitch here onto the first bean stitch, but I'll use both the yarns, white and pink. And slip stitch. तो दोनों yarns को यूज़ करके मैं slip stitch कर दूंगी. And then tighten the pink one and the white. And slip stitch here. Now we need to slip stitch into the chain 1 space. I'll slip stitch using only the white yarn. तो मैं सिर्फ वाइट कलर से स्लिप स्टिच कर रही हूँ अब चेन 1 स्पेस में, क्योंकि अब मुझे वाइट कलर यूज़ करना है इस राउंड के लिए. I'll just pull the pink yarn to tighten it up and the white yarn tail. And now from this round I can use my white yarn. And now I'll just measure the width first. So the crown width is about 12 centimeters, 12.5 centimeters. तो इसकी जो crown width है ये 12.5 centimeters है. And for the size for 0 to 3 months baby I think it's fine. तो 0 to 3 months बेबी के लिए ये वाला जो क्राउन बर्थ है मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा. तो मैं अब इसको और इंक्रीज़ नहीं करने वाली. सो आई विल नॉट डू एनी इंक्रीजेस नाउ. वी जस्ट हैव टू डू सिंपल बीन स्टिच, सिंगल बीन स्टिच इन ईच ऑफ द चेन 1 स्पेसेस. अब से बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई इंक्रीज़ नहीं करना हमने. बस हर एक चेन 1 स्पेस में एक एक बीन स्टिच करके राउंड्स कंप्लीट करने हैं. एंड आई विल बी डूइंग अ टोटल ऑफ 6 more राउंड्स of 1 bean stitch in each of the chain 1 spaces. So chain 2 and 1 bean stitch in the first chain 1 space,
तो इस तरीके से हमने हर एक चेन वन स्पेस में अब सिर्फ एक एक बीन स्टिच करते जाना है, हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, बस एक एक बीन स्टिच हर एक चेन वन स्पेस में हमने करना है अगले 6 राउंड्स के लिए. फॉर नेक्स्ट 6 राउंड्स दिस इज़ द पैटर्न. वी नीड टू 3 4 5 6 7 we need to do one bean stitch in each of the chain one spaces that we have. तो इस तरीके से मैं इसको करके 6 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ, दिखाती हूँ आगे क्या करना है. सो आई विल कंप्लीट 6 राउंड्स बाय डूइंग one bean stitch in each of the chain one spaces and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैंने 6 राउंड्स सिर्फ एक एक बीन स्टिच हर एक चेन वन स्पेस में कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड 6 राउंड्स with just one bean stitch in each of the chain one spaces and I have a total of 11 rounds now. अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो मेरे टोटल 11 राउंड्स हुए हैं. I have done 11 rounds and now I'll slip stitch onto the first bean stitch of this round and join. तो मैंने पहली bean stitch से slip stitch करके join कर लिया. Now we need to go into the next chain one space and slip stitch. तो next chain one space में slip stitch करेंगे and from here we will start our brim. तो यहाँ से हम अपना brim start करेंगे. तो उसके लिए पहले हमने चेन 2 करना है. चेन 2, 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशा स्टिच करेंगे उसी सेम स्पेस में. 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट चेन वन स्पेस. नेक्स्ट चेन वन स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. और नेक्स्ट चेन वन स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. सो वील मेक 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस, 1 and 2. Then again in the next chain one space we'll work 1 half double crochet stitch. next chain one space में एक half double crochet stitch बनाएंगे. in the next 1 half double crochet stitch, next वाली में एक half double crochet stitch बनाएंगे. in the next chain one space we'll work 2 half double crochet stitches, 1 and 2. so this is the pattern for this round. 1 1 2 1 1 2 ये पैटर्न है इस राउंड का. पहले स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच, नेक्स्ट स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच और नेक्स्ट वाली स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस. सो 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन द चेन वन स्पेस, 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस, 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस. दिस इज द पैटर्न फॉर दिस राउंड, 1 1 2 and I'll complete the round using the same pattern. 1 half double crochet stitch, 1 half double crochet stitch in the next chain one space, 2 half double crochet stitches in the next chain one space, 1 and 2. then again 1 half double crochet stitch, 1 half double crochet stitch, 2 half double crochet stitches in the next chain one space, 1 and 2. तो इसी तरीके से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी और फिर आपको मिलके बताती हूँ आगे क्या करना है. आई कंप्लीट द राउंड यूजिंग द सेम पैटर्न एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड द राउंड एंड एंडेड विथ 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस. तो लास्ट जो मेरी स्पेस थी यहाँ पे उसमें मैंने 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस किए हैं. एंड नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन. तो जो पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच था उस पर जॉइन करके स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे. नाउ वी नीड टू डू फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच. अब हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करना है. उसी की वजह से हमारा जो ब्रिम है उसका एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा. तो उसके लिए पहले हम चेन 2 करेंगे, चेन 2. एंड ये जो पहला यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे स्टिच है इस पर हम पहले फ्रंट पोस्ट करेंगे. वील डू अ फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच, yarn over, go behind the stitch like this. नीडल को स्टिच के पीछे डालना है. ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, yarn over, pull up a loop, you'll have 3 loops, yarn over, pull through all the 3 loops. So इस तरीके से फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच हमने किया है. अब नेक्स्ट वाली स्टिच में हमने बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच करना है. वी नीड टू डू अ बैक पोस्ट इन द नेक्स्ट स्टिच, yarn over, नीडल को पीछे से डालेंगे और स्टिच के थ्रू निकाल लेंगे इस तरीके से. ये देखिए, yarn over, pull up a loop, you'll have 3 loops, yarn over, pull through
all the 3 loops. फिर नेक्स्ट वाली में हम फ्रंट पोस्ट करेंगे. we'll do a front post here, yarn over, go behind like this, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. नेक्स्ट वाली में बैक पोस्ट करेंगे, yarn over, bring the needle from behind, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. इसी तरीके से हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते जाना है पूरे राउंड में. सो वी नीड टू रिपीट दिस पैटर्न for this round, front post, back post. So here we have done a back post, so now we need to do a front post. Front post and back post, the difference is that when you're doing a front post, the stitch comes on the needle like this, and then you pull up a loop and you complete your stitch. And when you do a back post, the stitch goes behind the needle and you pull up a loop and you complete your stitch. That is the difference between front post and back post. So when you do a front post, the stitch comes in front like this, and when you do a back post, it remains behind like this. यही डिफरेंस है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का. जब आप फ्रंट पोस्ट करते हैं, अब जैसे नेक्स्ट वाले में हमने फ्रंट पोस्ट करना है, तो स्टिच नीडल के ऊपर फ्रंट पे आती है. सो इट कम्स ऑन द फ्रंट ऑफ द नीडल एंड देन यू पुल अप अ लूप एंड यू कंप्लीट योर स्टिच. एंड व्हेन यू डू अ बैक पोस्ट, जब आप बैक पोस्ट करते हो तो नीडल के पीछे स्टिच चली जाती है और आप लूप पुल करते हो, यू पुल अप अ लूप एंड यू कंप्लीट द स्टिच. सो दैट इज द difference between front post and back post. So I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. I've completed the round. मेरा round complete कर लिया है and now I'll go on to the second chain of the chain 2 that I had made at the beginning and I'll slip stitch. तो जो पहला हमने 2 chains बनाई थी उस पर slip stitch करके हम join कर लेंगे. chain 1 and now we need to do a front post on the front post and back post on the back post. तो जो front post हाफ डबल क्रोशे स्टिच है उस पर फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच करना है और जो बैक पोस्ट है उस पर बैक पोस्ट करना है. सो yarn over, front post, half double crochet stitch, yarn over, in the next back post, half double crochet stitch. So we need to repeat this until we complete the round. तो इसी तरीके से हमने राउंड को कंप्लीट करना है. फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच करना है और बैक पोस्ट वाली स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच करना है. इस तरीके से ये हमारा ब्रिम बन के रेडी हो जाएगा. सो आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर. आई हैव कंप्लीटेड राउंड 14. राउंड 14 मैंने कंप्लीट कर लिया है. आई विल स्लिप स्टिच टू द फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच हियर. तो जो फ्रंट पोस्ट था उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दूंगी. चेन 1 एंड अगेन वील रिपीट द सेम राउंड, सेम पैटर्न ऑफ द प्रीवियस राउंड. तो जो प्रीवियस राउंड में हमने पैटर्न किया था वही हम रिपीट करेंगे. फ्रंट पोस्ट ऑन द फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट ऑन द बैक पोस्ट. तो जो फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच है उस पर फ्रंट पोस्ट करेंगे और जो बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच है उस पर बैक पोस्ट करेंगे. तो वही जो पिछले राउंड में हमने पैटर्न किया था वही हमने रिपीट करना है. तो अगर आपकी स्टिच फ्रंट पोस्ट है तो आपने उसमें फ्रंट पोस्ट करना है, अगर आपकी स्टिच बैक पोस्ट है तो उस पर आपने बैक पोस्ट करना है. सो यू जस्ट हैव टू डू फ्रंट पोस्ट ऑन द फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट ऑन द बैक पोस्ट. सो जस्ट कीप डूइंग दिस अंटिल यू कंप्लीट द राउंड. एंड दिस इज़ राउंड नंबर 15 एंड दिस इज़ द लास्ट राउंड एंड आवर क्यूट लिटिल कैप विल बी रेडी. तो इसके बाद हमारी ये प्यारी सी कैप बन के रेडी हो जाएगी. इसका साइज़ 0 to 3 months के बच्चे के लिए परफेक्ट रहेगा. अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस साइज़ का चाहिए, तो मैं उस साइज़ का ट्यूटोरियल कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड करने की. तो इस तरीके से हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करते जाना है और उससे देखिए ये ब्रिम का ये इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. ये देखिए मैंने ये 15th राउंड भी कंप्लीट कर लिया. आई फिनिश्ड 15th राउंड एंड आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेते हैं. इसको पुल करके टाइट कर देंगे. विल पुल इट एंड टाइटन इट अप एंड देन वी कैन यूज़ अ टेपेस्ट्री नीडल टू वीव इन द यार्न टेल. इसको वीव इन कर देते हैं. और अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास काफ़ी यार्न टेल्स हैं वीव इन करने के लिए. तो इसको मैं अंदर की तरफ पहले बाहर निकाल रही हूँ. आई एम bringing the wrong side out so that I can weave in all the yarn tails and then I'll
bring the right side out and our cap will be ready. तो मैं इसको वीव इन कर रही हूँ टेपेस्ट्री नीडल की मदद से. तो यहाँ टॉप से स्टार्ट कर रही हूँ मैं. तो पहले स्टिचेस में जाके फिर उसके बाद इसको थ्रेड इन कर देंगे. एंड देन पुल कर देंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न होगी उसको हम कट कर देंगे. वील कट दी एक्स्ट्रा यार्न. और इसी तरीके से बाकी भी सारे जो भी यार्न टेल्स हैं उसको मैं वीव इन कर दूंगी. आई वीव इन ऑल द यार्न टेल्स. मैंने सारी यार्न टेल्स को वीव इन कर दिया. वीव इन ऑल द यार्न टेल्स एंड नाउ आई कैन जस्ट फ्लिप माय कैप एंड ब्रिंग द राइट साइड आउट. राइट साइड को हम बाहर की तरफ ले आएंगे एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. ये देखिए इस तरीके से ये लग रही है. और ये 0 to 3 months के बेबी की साइज़ की मैंने बनाई है ये. And I hope you like the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting. Stay safe. Be happy. Bye bye.